وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق جو ہے کام کرتے ہوئے ہم نے جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ کلی کچہریوں کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. یہ جو ہے اس سلسلے میں 4 کلی کچہریاں جو ہیں اب تک ہم منعقد کر چکے ہیں. اور جب ہم نے پہلی کلی کچہری کو 4 ماہ پہلے کی تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور یہ اناؤنس کیا کہ ہم یہ ہر مہینے کے آخری جمعے کو 4 بجے کیا کریں گے. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ پوری کمیونٹی میں جو ہے بات پھیل جائے اور ٹائم کا دن کی ایمبیگوٹی نہ رہے. اور پچھلی 4 کلی کچہریاں ہم نے اسی اسکیجول کے مطابق کی اور انشاءاللہ آگے کی جو ہے ہم اسی اسکیجول کو فالو کریں گے. اور پہلی میں تو بہت کافی سارے لوگوں نے شرکت کی، لیکن آخری ایک 2 میں جو ہے شاید لوگ ہمارے کام سے مطمئن ہیں یا کیا بہت زیادہ تجاویز اور شکایت جو ہے وہ نہیں ملی. لیکن پھر بھی جو یا ودن 3 to 4 ویک جو جس میں پہلے مہینوں لگ رہے تھے، جیسے ہی ہمارے پاس جواب واپس آتا ہے وہ جو ہے آپ لوگوں کی ویریفیکیشن آ جاتی ہے، اس سے ریلیٹڈ اگر پاسپورٹ بننا ہے تو پاسپورٹ کا کام ہو جاتا ہے. اور یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بیسیکلی کیا گیا کہ وہ اس کی سینس سسٹم کی کیپیسٹی جو ہے وہ ڈبل کر دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہاں پہ جو ہے وہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اٹیسٹیشن کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، کسی بھی کام کے لیے اپوائنٹمنٹ کا مقصد ہے آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. یعنی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ 11 بجے کی اپوائنٹمنٹ لے کے 5 منٹ پہلے آیا تو وہ 5 منٹ میں جو ہے ہمارے کاؤنٹر پہ ہو، اس کا اگلے 10 منٹ میں کام ہو جائے. یا آپ لوگوں کی کسی ایکسٹینٹ جتنا پاسبل ہو وہ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ان کی جو شکایات ہیں وہ جو ہے سفارت خانے جو ہے ان تک ان کی رسائی ہو لوگوں کی. اور کسی بھی قسم کی شکایت، کسی بھی قسم کی جو ہے جو کمیونٹی سمجھے کہ امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے سفارت خانے کے کام میں کمیونٹی سے ریلیٹڈ، وہ جو ہے فوری طور پہ جو ہے کر دیا. تو اسی ویژن کے تحت جو ہے ہم لوگ بھی یہاں پہ جو ہے اسی ویژن کے تحت وزیر اعظم کے ویژن کے جو کا ان کا ہاتھ نہیں مل جائے گا. انڈیا اپنے جو اس نے کیا تھا 5 اگست کو، اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اس وقت تک ہم کشمیر کے لیے مظاہرے کرتے رہیں گے تاکہ دنیا میں یہ چیز جو ہے سب کو پتہ لگے. تو کیا اب یہ 30 جون سے یہ پابندی جو ہے ختم ہو جائے گی لاک ڈاؤن کی، اور فرانس میں تو ٹوٹلی ختم ہو جائے گا، تو کیا اس کے بعد ہم اس چیز کو دوبارہ شروع کریں گے؟ پہلے ووٹنگ جو رائٹ ہے اگر پراپرلی تو یہ آرڈیننس کے تحت جو ہے گورنمنٹ نے آلریڈی جو ہے آپ لوگوں کو رائٹ کو دے دیا ہے. ہاں جی، گورنمنٹ نے اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ آلریڈی اناؤنس کر دیا ہوا ہے. اب اس میں صرف وہ جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ اس کی بیسیکلی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیا ہو، پریکٹیکلی کس طرح آگے لے کے چلا جائے گا. تو یہ پرنسپل وہ بات کو طے پا رہی ہے نا. لیکن ابھی وہ چیلنج کر رہی ہے نا ابھی گزشتہ میں مجھے ایک فیملی نے کال کی تھی کہ اگر آپ کے سورسز ہیں آپ ان سے بات کریں، کیونکہ انہوں نے پہلے اپائنٹمنٹ دی گئی تھی. پھر جب اپائنٹمنٹ ان کی وہ کرنے کے لیے آئے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ نہیں آن لائن ہے. اب ان کی بیٹی کی شادی ہے، ان کی جانے کی تاریخ جو ہے 13 جون ہے، اور جب انہوں نے آن لائن کیا تو اس بچی کے پاسپورٹ میں 4 دن کم تھے، تو وہ ویلڈ نہیں ہو رہا. ان کو یہ پرابلم آ رہی ہے. تو کیا اس سلسلے میں ویسے کوئی ان کی ہیلپ کرے گی؟ مجھے ابھی آج انہوں نے یہ کویشچن لے کے بھیجا کہ اگر 4 دن کی مطلب آ گیا، وہ اگر وہ میری میں جمع کرائیں گے جا کر پاسپورٹ یہاں پر میری میں کرنا پڑتا ہے تو 2 مہینے یا 1.5 ماہ لگتا ہے، 6 ہفتے لگتے ہیں بننے میں. تو یہ ایرر آ رہا ہے کہ وہ آن لائن کر نہیں پا رہے ہیں، ویزا لے نہیں پا رہے ہیں. پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے، ایکسپائر نہیں، 6 ماہ میں 4 دن کا ہے. مطلب اس میں آتا ہے کہ 6 ماہ ویلڈ ہونی چاہیے پاسپورٹ جب یہ ویزا ایمبیسی دیتی ہے. تو یہ جنرلی میں ایک دیکھیے ہم مطلب کہ ان کو مینٹین کر سکتے ہیں، ویزا ہم دے دیتے ہیں. یہ 6 مہینے والی ویلیڈیٹی جو ہے نا، یہ بہت سی ایئر لائنس اس پہ جو ہے نا وہ ان کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس لیے ایئر لائن جو ہے نا وہ تھوڑی سی مطلب نظر ثانی کی جائے گی. ہم تو جیسے ہم ویزا دے دیں گے، فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. ایمرجنسی سچویشن ہے، ہم ایسے کیسز میں ہیلپ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم بالکل ہی کہیں بھی ایک دن اوپر ہے، لیکن وہ ہم مینیج کر لیتے ہیں. لیکن پھر بھی ان پہ ہوگا کہ وہ اگر ایئر لائن کے ساتھ جو ہے وہ ایئر لائن میں ان کو ٹریول کرنے دیں. آج کل تھوڑی سی ریسٹرکشنز ہیں.
लेकिन एक पर्टिकुलर केस है, आप अगर उनका फ़ोन नंबर हमें दें तो हम उनसे खुद रब्ता करके ऐसे केस पूरा सामने हो, तो लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो बिल्कुल पाकिस्तान जा सकें। हमने मीज़ान बैंक के साथ मिलके, मीज़ान बैंक और स्टेट बैंक के कुछ ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ मिलके हमने एक वेबिनार का इंतज़ाम किया है। आइडिया ये है कि इस तरह मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंक इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मीज़ान बैंक भी बड़ा बैंक है, उन्होंने कहा अप्रोच किया कि आप हमारे साथ मिलके कम्युनिटी में, ताकि ये आगे मज़ीद हो और उनकी सर्विसेज वो भी ऑफर करेंगे। तो वो जो है एक वेबिनार इंशाल्लाह आप उनके साथ मिल के करेंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि उसमें जो है आप एक बड़ी तादाद में जो है वो हिस्सा लें, क्योंकि स्टेट बैंक के, मीज़ान बैंक के ऑफिशियल्स मौजूद होंगे। आप लोगों के कोई सवाल हैं, आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं, कोई तजावीज़ हैं इससे रिलेटेड, तो वो उसको सुनेंगे। और ये जो है पाकिस्तान के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन जिन लोगों ने भी ये अकाउंट खोला है उनसे पर्सनली जब हमने पूछा तो वो बड़ा इसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है बहुत हाई है। और ये मेरा ख्याल है हुकूमत की और स्टेट बैंक की ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, और ये इंतहाई कामयाब कदम अब तक जो है कि नादरा डेस्क की अप्रूवल जो है हमारे पास आ चुकी है। इंशाअल्लाह जुलाई के एंड तक नादरा से एक टीम आएगी जो यहाँ पे जो है अपना सेटअप लगाएगी, और मेरा ख्याल है अगस्त के पहले हफ्ते से जो है एक फुल फ्लेज नादरा डेस्क जो है, जो नादरा रिलेटेड आप लोगों के काम है, वो जो है वो एमसी में आप लोग आके जो है करवा सकेंगे। ये मेरा अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, अच्छी कोऑर्डिनेशन के लिए वो फोकल पर्सन मुतय्यन किए जा रहे हैं। आया ये इतलास गलत थी या सही थी या कुछ हुआ है इसके ऊपर काम, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। और इसके साथ एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि आप सब जानते हैं राहुल साहब अल्लाह ताला को जन्नत फिरदौस में जगह दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि एक फातिहा पढ़ने के लिए। थैंक यू। पिछले दिनों एक फैसल मजीद साहब की डेथ हो गई थी, बहुत परेशानियों से हम गुजरे हैं, और इनके ताल्लुक से हम उनकी फैमिली तक भी पहुँचे हैं, और इनकी जो डेड बॉडी भेजी है, आपने भेजी है, उसका सारा खर्चा वैसे ही अदा किया, हम आपके मशहूर हैं। अभी 6 हफ्ते पहले एक दोस्त है ज़हीर रज़ा साहब, उनकी पैलेस में डेथ हुई है। बड़ी कोशिशों से इनसे मेरा रब्ता रहा है, हमने कल वो डेड बॉडी उनके घर से निकाली है, और हो सकता है वो 1 हफ्ता लगता है, 2 हफ्ते लगते हैं वो डेड बॉडी पाकिस्तान भेजने में। तो और इसके अलावा अगर PIA जो है 2 हफ्ते बाद जा रही है, अगर हुकूमत पाकिस्तान एयर फ्रांस को इजाज़त दे दे तो हमारे सब पाकिस्तानियों के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। इसलिए एयर फ्रांस जाएगी, उसमें अभी देखिए जो PIA से एक फ्लाइट है 2 हफ्ते बाद जा रही है, आज एक टिकट खरीदा है 850 का वन वे। ये जो मजदूर तबका है 850 में वन वे टिकट खरीदने का नहीं खरीद सकता। अगर एयर फ्रांस शुरू हो जाए तो उसमें काफ़ी पाकिस्तानियों के मसले हल हो सकते हैं। और मैं एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, चंद दोस्त अक्सर ये कहते हैं हमें एम्बेसी ने मुंतखब किया हुआ है, किसी की डेथ हो तो हम आपके तावन के लिए आए हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपने किसी आदमी को मुंतखब किया हुआ है इस सिलसिले में, या अदालत में राजकुरान जब दिन रात हो 24 आवर हो, कोई भी आदमी हमसे रब्ता करे, हम हर वक्त लोगों को फ्री में उनकी हेल्प करते हैं। आज भी जैसे फ्लाइट के लिए 8 डेड बॉडियाँ जा रही हैं, तो हम स्वाय दुआ के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम आपके ताउन का शुक्रिया अदा करते हैं, खासतौर पर साहब का मैं जब भी इनसे रब्ता करता हूँ ये मेरे साथ ताउन करते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके 2 सवालों का। पहले जो है ये आपके दूसरे सवाल पे आपने कहा कि किसी का किसी से कोई खास रब्ता है, किसी को हमने नॉमिनेट किया हुआ है। हमने पाकिस्तानी कम्युनिटी में किसी को नॉमिनेट नहीं किया हुआ। हम आप सबको जो भी इस कार्यकाल से रिलेटेड लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो हमारी नज़र में बराबर हैं। आप जब भी आप में से जब भी कोई भी इस डेड बॉडी से रिलेटेड हमें अप्रोच करता है तो हम जो भी जो कागजी कार्रवाई होती है वो भी करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन है कौन नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। जो भी इदारा, जो भी बेशक बढ़ते वाहिद इदारा हो, जो भी हमारे पास आ रहा है हम उसका काम वो कर रहे हैं। इसमें हमारा किसी से कोई खास ताल्लुक, कोई हमारी तरफ से नॉमिनेशन वो नहीं है, वो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। सेकेंडली जो है आपने ये फ्रांस का जिक्र किया, तो ये देखिए हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी है कि वो आपने पिछले दिनों देखा होगा कि ब्रिटिश एयरवेज भी
पाकिस्तान जा रहे थे, तो हुकूमत पाकिस्तान में अप्रिशिएट करती है, मतलब फैसिलिटेट करती है अगर कोई फॉरेन एयरलाइन जो है, एक ज़माने में एयर फ्रांस चलती थी, एक फॉरेन एयरलाइन दोबारा पाकिस्तान से जो है अपना रूट इस्टेब्लिश करना चाहती है, वो हम तो उसको वेलकम करते हैं। ये इशू जो है ये आखिरी दफ़ा तो दरमियान कोविड का पीरियड आ गया, इससे बिल्कुल पहले जो है एयर फ्रांस से जो है हमारी मुलाकात हुई थी एक्चुअली। उनको हमने कहा कि जी ये जो है आप किसी ज़माने में पाकिस्तान फ्लाई करते थे, तो आप जो है अच्छी बड़ी कम्युनिटी है, अगर आप कंसिडर करें दोबारा पाकिस्तान आपकी एयरलाइन अगर ऑपरेट करना चाहेंगी तो हम हुकूमत से आपका रब्ता करा देंगे, जहाँ भी हम आपको पूरा फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो उस टाइम जो है हमें जवाब ये दिया गया कि उनकी नज़र में ये जो उनके वो जो इकनॉमिक मैनेजर्स थे, उनकी नज़र में उन्होंने ये जवाब दिया कि उनके लिए इकनॉमिकली वायबल नहीं है। हमने जब उनको उनके सामने रखा कि देखें उनके से ब्रिटिश एयरवेज चलना शुरू हो गया, वर्जिन अटलांटिक जा दिया, तो वो जो है तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो है देखिए 1.1 मिलियन की कम्युनिटी है, जहाँ जो है 1 लाख या उससे कुछ ज़्यादा की है, तो उनके मुताबिक वो उस वक्त एटलीस्ट वो इकनॉमिकली तो फिजिबल नहीं था उनके लिए। लेकिन ये देखा गया कि कोई डेथ वगैरह का केस है तो उसके लिए क्या वो आप ले सकते हैं या क्या? उसके लिए बेसिक ये है कि आप अप्लाई ऑनलाइन करें, ठीक है। बेसिकली ऑनलाइन सिस्टम में होता क्या है कि ऑनलाइन सिस्टम जब अप्लाई करते हैं तो वो कुछ पाकिस्तान में कुछ डालेंगे, कुछ साथ ही हमारे पास एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। उसमें लेट्स से आपको इमरजेंसी है, आपको मैं बताना भूल गया कि हमारे हेड ऑफ काउंसिल सेक्शन है, इनका अपना ज़ाती मोबाइल नंबर जो है वो एमबीसी की वेबसाइट पे दिया गया है। आप उस नंबर पे जब तो आप पैसे एमबीसी फ़ोन करेंगे ना, उसको छोड़ें, आप अपने ज़ाती मोबाइल नंबर पर फ़ोन करें और बताएंगे कि मैंने 5 मिनट पहले एप्लीकेशन फाइल कर दी है, मुझे इमरजेंसी है, मैं जो है 3 मिनट के बाद जाना चाहता हूँ, आपको मुझे इंशाल्लाह मिलेगा। इसमें मैं आप सब बैठे हैं कि इस पे हमने फैसला किया था बेसिकली कि एक कम्युनिटी के ही कुछ लोगों की एक कमेटी छोटी सी बनाई गई थी और उसमें खैर लोगों ने वॉलंटियर भी किया था, कुछ 4-5 लोग थे शायद, और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था एम्बेसी से, क्योंकि जैसे आपने बात कर दी ना, इसी तरह पहले लोगों ने बात की, लेकिन जो सही सिचुएशन है एग्जैक्ट हमें ग्राउंड रियलिटी पे ग्राउंड पे पता हो कि वो क्या रहा है, अगर इसकी ज़रूरत है तो कहाँ ज़रूरत है, और इससे रिलेटेड दूसरे मामला वो उन्होंने मुझे एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है कौन लोग थे, उन्होंने एमसी से प्रॉमिस किया था कि हम वर्क करके आपके साथ आपको मिलेंगे और फिर आपको तजवीज़ देंगे, पॉसिबिलिटीज़ रखेंगे कि इन लाइन्स पे आगे काम हो सकता है। अगर हमें एमबीसी का उसमें जो रोल यहाँ आप लोगों के साथ मिलकर लोकल गवर्नमेंट के साथ होगा वो एमबीसी करेगी, अगर पाकिस्तान से जो है हमें कुछ मदद चाहिए होगी तो हम वहाँ से भी लेंगे। ये मुझे फैसला याद है अच्छी तरह, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि उस कमेटी में मेम्बरान कौन थे, क्योंकि जो थोड़ा सा शायद अगर मेरे जहन में आ रहा है कि ये जर्नलिस्ट की तरफ से ज़्यादा ये चीज़ उठाई गई थी, उसमें शायद कमेटी नहीं बनी, कमेटी बना लेते हैं मामला शुरू हो गया, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं, कमेटी बनाई जाती है, एक कमेटी बना लेते हैं। कोई अमल दरामद हो सका, इसलिए आया इस सिलसिले में कोई आप लोगों ने किया है काम या नहीं। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि पिछले दिनों रमज़ान के महीने में जिस तरह मतलब ये जो शुरू हुआ था पाकिस्तान में ईद तहरीक फ्रांसीसी वो जो वहाँ पे अम्बेसडर उसमें अम्बेसी का रोल यहाँ की हुकूमत के साथ कुछ हुआ है या नहीं, आप लोगों ने किया है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में इस तरह का कि कोई वाक़या हो, इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं, आप लोगों ने कुछ इसमें मतलब किरदार किया है नहीं, या क्या सोचते हैं? ने पाकिस्तान फेस्टिवल कमेटी बनाई, पाकिस्तान के ताउन से और पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन से 3
बड़े प्रोग्राम भी हुए। पहले 2 प्रोग्राम तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के पूरा तावन और हुए, लेकिन आखिरी प्रोग्राम में 2-3 लोगों ने उस पर सारा कब्जा कर दिया और कम्युनिटी की कोशिश रही कि क्योंकि एक अच्छा प्रोग्राम हो रहा है तो इंतशार ना फैले, तकसीम ना हो, तो उसको लोग चुप कर गए। आपको एक प्रोग्राम में बुलाया गया, एक मीटिंग में, और वहाँ पे ये भी बात की गई कि जब ये पाकिस्तान फेस्टिवल कमेटी बनी थी तो इसका टेन्योर सिर्फ 1 साल के लिए था, लेकिन तीसरा साल आ गया तो किसी को कुछ पूछा नहीं गया। जो लोग उसकी फिनांस कमेटी में थे, उनके अलावा जिन लोगों ने फंड दिए, 3 साल में किसी को भी उस हवाले से आज तक उस फंड की डिटेल, कितने पैसे इकट्ठे हुए और कहाँ पे खर्च हुए, वो नहीं बताया गया। और जो आखिरी प्रोग्राम था उसमें टोटली सिर्फ 2 लोगों ने अपनी मर्जी से उस प्रोग्राम को हाईजैक किया और बाकी जितने भी जो बानी थे, जिन्होंने शुरू में फंड दिए, टाइम दिया, उन लोगों को वहाँ पे नज़रअंदाज किया गया। 2019 के बाद आपने उस मीटिंग में वादा किया था कि अब उनके 15 दिन रह गए फेस्टिवल में, इस वक्त हम कुछ नहीं करते, लेकिन जैसे ही फेस्टिवल ख़त्म होगा तो हम एक मीटिंग बुला के तो नई पार्टी अनाउंस करेंगे। तो सर, आज तकरीबन 1.5-2 साल हो गए उस वाक़े को, वो कमेटी को ना तो उस हवाले से कोई मीटिंग बुलाई गई, ना ही बात की गई, और बराज यानी साहब बैठे हुए हैं, इनके बार बार बुलाने के मीटिंग के हम मीटिंग बुलाएं और वो जो फेस्टिवल के फंड की जो उसका हम ऑडिट करें, पता चले कितने पैसे करें, कुछ उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आपसे गुजारिश ये है, क्योंकि ये पाकिस्तान फेस्टिवल कमेटी इसी सफारतखाना में इसी हाल में बनाई गई थी, तो जितनी जल्दी हो सके कम अज़ कम वो जो 10-12 लोग वो कमेटी बनाई गई उनको बुलाया जाए, फंड का हिसाब दिया जाए और फौरी तौर पे जो है वो नई कमेटी बनाई जाए। वो लोग जो वाकई ही जिन्होंने इसके लिए काम किया है, जो पिछले 3 सालों में इसमें हज़ारों यूरो अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं और एक्टिव हैं, उन लोगों को सामने लाया जाए, जैसे कि उस पर कोई कब्जा बोल बैठा है। ये अच्छा कि आपने जो है स्पेशली मुझे आप लोगों ने दावत दी थी, तो मैं उस पर मैं ये कहूँगा कि शायद ना चाहते हुए जो है मैं आया था, तो उसकी वजह भी है। जैसे कि आप ये पाकिस्तान फेस्टिवल कमेटी जो है ये मेरे होते हुए बनाई गई, उस सारा जो प्रोसेस था उसके बनाने का, उसके निज़ामात का, ये जो है ये एमएससी ने और आपको तो उसके जो है अभी भी एक बड़े अहम फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं, तो वो जो है ये आप लोगों के हमने मिल के बेसिकली ये काम किया था। और मैं ये बताता चलूँ कि बेसिकली ये पहले भी शायद आप लोगों से जिक्र हुआ होगा कि एमएससी का मकसद क्या था। मोइन साहब और जब हमने आपस में ये डिस्कस किया था ये सारा ये प्रोजेक्ट और ये सारा आइडिया जो है, तो हमारा आइडिया ये था कि ये कमेटी बनाई जाए, पहले तो ये फेस्टिवल कराया जाए, ये कमेटी बना के वही इसको फेस्टिवल कराए। एमएससी जो है एटलीस्ट पहले जो फंक्शन है इसका, उसमें पूरी तरीके से जो है सपोर्ट करेगी इसको। सपोर्ट इन द सेंस कि आपको याद हो कि हमारे अफसरान ने उस पहले इवेंट में आप लोगों के साथ मिल के कुर्सियाँ भी लगाई थी, आप लोगों के साथ मिल के हमने स्टेज भी सेट किया था। जी फंड भी दिया, फंड जैसे आपने नहीं किया, फंड तो कर दिए तो वो जो है, लेकिन मकसद ये था कि जब एमबीसी के वो लोग एटलीस्ट जो कि इस प्रोग्राम को, इस आइडिया को शुरू करने वाले हैं, लेट्स से वो 2-4 साल बाद यहाँ पे ना हो, हम लोग ज़ाहिर है पोस्ट आउट हो जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, पाकिस्तान वापस चले जाते हैं, तो ये जो है फेस्टिवल कमेटी और आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन जो है कम्युनिटी की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि इसको खुद ही अगले सालों में ये आप एम्बेसी से सिर्फ वो जो है वाजबी सी सपोर्ट मांगे और कम्युनिटी खुद इस काबिल हो कि इस प्रोग्राम को आगे लेकर चले। ये आइडिया था। और मैं पता कि मुझे एटलीस्ट पर्सनली जो है ये बता के खुशी होती है कि पहले प्रोग्राम को देख लें, दूसरे को देख लें, तीसरे को देख लें। एम्बेसी ने जो है जानबूझ के अपनी जो है वो जो पार्टिसिपेशन थी
वो आहिस्ता आहिस्ता कम की। हम आप लोगों के साथ खड़े थे, लेकिन हमने आपका रोल जो है वो उसमें बढ़ाया। अब आप लोगों के साथ मिल के आप लोगों को बता के बढ़ाया कि ताकि तीसरे प्रोग्राम तक जाते हुए आप कम्युनिटी कमेटी इस काबिल हो कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली करे, ताकि ये आगे बेशक एमबीसी की इन्वॉल्वमेंट तो ज़ाहिर है होगी, लेकिन आपको खुद इसको जो है इंडिपेंडेंटली इस प्रोग्राम को आगे कई सालों तक लेके चलते रहे। और वो तीसरे प्रोग्राम में उसी तरह हुआ। एमबीसी ने मीटिंग्स कराई आप लोगों की, लेकिन एक फैसिलिटेटिंग रोल ही रखा। आप लोगों को अर्ज करते रहे हम कि ये ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो कम्युनिटी खुद करे, और तीसरे प्रोग्राम में वो बिल्कुल इसी तरीके से ही हुआ। लेकिन यहाँ की बात ठीक है कि उस जो आखिरी मीटिंग हुई थी, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों की स्किल सेट जो है वो प्रोग्राम चलाने का वो इतना डेवलप हो चुका हुआ है कि आप लोग खुद ये करा सकते हैं, लेकिन हम आपकी सपोर्ट में बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उसमें जो है उस कमेटी उस लास्ट मीटिंग जो हुई थी उसमें हमने यही फैसला किया था कि इसको जो है दोबारा से इसकी रीऑर्गेनाइजेशन की जाएगी। लेकिन उसके बाद फौरन ही मेरा ख्याल है वो कोविड स्टार्ट हो गया, अगला फेस्टिवल वैसे ही पोस्टपोन करना पड़ा कोविड की वजह से। अब आई डाउट कि वो कि अगला भी हालात उस वक्त तक होते हैं या नहीं होते, लेकिन पॉसिबिलिटी है। मैं चाहूँगा कि इस साल का फेस्टिवल अगर कोविड के हालात बेहतर हो तो ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो कॉन्टीन्यूटी का सिलसिला जो है वो बरकरार रहे। एमबीसी इसमें आप लोगों को फिर जो है मुकम्मल सपोर्ट करेगी। और ये जो इसको ये मेरा ख्याल है अपनी अच्छी तजवीज़ है कि आइंदा आने वाले दिनों में एक मतलब जल्द ही कोशिश करते हैं कि एक जो है एक कम्युनिटी मीटिंग, उस कम्युनिटी मीटिंग प्लस इस कमेटी की जो मीटिंग है वो एमबीसी में ही बुलाते हैं, ताकि आप लोग भी शामिल हों। और उसका जो है हम देखें कि उसका जो है उसके नए इलेक्शन कराने हैं, उसको चार्टर भी देख लेते हैं कि उसके चार्टर में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से लिखी गई थी कि अहदेदार आगे किस तरह चेंज होंगे। तो उसी तरह जिस तरह वो एग्रीमेंट वो एक लीगल सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ही बना हुआ है बेसिकली। हमें ये आसानी होगी कि हम उसको सॉर्ट ऑफ अप्लाई कर दें। तो ये बिल्कुल ये जो है ये इंशाल्लाह ये कराते हैं, ताकि जो उस पर जो काम है वो हम जितना जल्दी कर लें। तो अगर कोविड की सिचुएशन परमिट करती है तो फिर से अगस्त या सितंबर में जो है जैसे हम पहले करते हैं, तो इस फेस्टिवल का जो चौथा एडिशन है वो इंशाल्लाह कराएंगे। पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड ये काम हो गए। उसके अलावा जो जितनी भी कम्युनिटी है जो यहाँ पर बिजनेसमैन हो गए हैं, पाकिस्तान भी काफ़ी डेवलप हो चुके हैं यहाँ पर, इनको कोई रास्ता दिखाया जाए जिस रास्ते पे वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पर या ही किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट पर, उसका साथ दें, उसको साथ लेकर जाएं या उसको प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दें। ये एक और दूसरा सवाल है कि वैसे हो सकता है मेरे ख्याल में आपकी कोई प्लेटफॉर्म हो, जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तानी फ्रेंच लोगों का नहीं, या पाकिस्तान का कोई प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उस पर अगर काम कर सकते हैं या हमें ऐसी कोई चीज़ दे रही है क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है हमें, या इन्वेस्टर जो बिजनेसमैन लोग के हवाले से, तो वहाँ पे जब तहफ़्फ़ुज़ात मेरे ख्याल में एक ही वजह जहाँ से तहफ़्फ़ुज़ात ने जन्म लिया था, बात शुरू हुई थी कि पिछले 2 साल का ऑडिट में, वहाँ से तो तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो गए, बहस हुई, बाद में फैसला ये हुआ कि इसको यही रहने दें, ये फेस्टिवल भी करवाएं, इसमें भी पैसे दें, और इसके फ़ौरन बाद पिछला भी होगा, ये भी ऑडिट होगा, और इस पर बात क्लोज हो गई थी और फेस्टिवल हुआ था। कम्युनिटी बड़ी पैशनेट है, वो करना चाहती है, ये हमारा इमेज है, हमें अपने अच्छे इमेज भी करना है। एक तो ये याद रखते हुए कि उसके फौरन बाद या वहीं पे बात हुई थी कि ऑडिट होगा, 3 नवंबर का नहीं होगा। दूसरी है कि जो बात हो रही है ना कब्रिस्तान वाली, बिल्कुल यहीं पे इसी हाल में बात हुई थी, कमेटी की भी बात हुई थी, आपने की थी, अतीक भाई ने अपनी स्टडी आपके साथ शेयर की थी, कहा था कि अरबियों ने कोशिश की है, मुझे याद पड़ता है, अरबियों ने कोशिश की है, इनकी मालूमात थी कि मुसलमान अलहदा या यहूदी अलहदा बहुत पैसे वाले वो बना सकते हैं, ये यहाँ पे वो इनका इक्वालिटी जो है वो याद नहीं रहती उनकी, तो वो बन नहीं सकता। और वो मामला यहीं पे क्लोज हो गया था, मुझे याद है। ये जो 2 याददाश्तें हैं मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन वो पैसा ज़ाया उनका हो गया, आइंदा वो नाकाम होकर वापस आ गए, आइंदा वो कभी पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मैंने 2 लाख करवाने का सोचा था,
2 लाख मैंने किले लगाने का सोचा था, मैंने जमीन ले ली है। अब वहाँ के पटवारी और ब्यूरोक्रेट्स मुझे इतना तंग कर रहे हैं, अब जगह गई तो हमें दे दो, ये जगह गई तो हमें दे दो। मैं वो जो 2 लाख दरख्त लगाने का मेरा एक सोच थी, वो दली की दली रहेगी। अभी भी वो जगह क्लियर हो जाए, 2 लाख दरख्त मैं 2 साल में लगा देता हूँ। आप हमें बताएं, देखिए जी जी, ये भी पंजाब जेल के पास में जगह ली है। तफसील दें तो सही ना, आप एक तो बात है ना, ठीक है 4 महीने हो गए पूरी कचहरी कर रहे हैं, आप उसमें आना चाहिए था। ये एक मसला है ना आपके नजदीक, अब ये जेन्युइन मसला है, आप हमें बताएंगे तो उसका हल निकालेंगे इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल आके मिले, बेशक आपके पूरी कचहरी में आ जाए, पर्सनली आके मिल लें, आप बताएं तो आगे काम चल। उन्हें भी हमेशा यही शिकायत रही है कि हमें अच्छी जगह पे प्लेस नहीं मिलती, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो दूसरी दफ़ा आ ही नहीं सकते, इतने हमारे अखराजात हैं, सब कुछ है, जिसकी वजह से ये ठीक बात है कि हम लोग खबर नहीं चलाते, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आप लोगों को ये बताएं कि मर्शद जो हमारा यहाँ पे सेक्शन है, अगर उसमें अखराजात किए जा रहे हैं तो उसका काम बनता है कि वो कम्युनिटी के साथ वो लोग जो बाहर से आते हैं, मेरे पास उनकी वीडियो मौजूद है कि जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे साथ जो है वो तावन नहीं किया जाता, हमें वीजे नहीं दिए जाते, हमें ये नहीं। वो पिछली दफा अगर कमल बशीर साहब थे, उनके सामने बात हुई, मैंने कहा नहीं इसका नहीं है, लेकिन आप ये बात बता रहे हैं कि हमारे जो यहाँ पे तैयारी करने के लिए लोग आ रहे हैं, अगर इस तरह मरे गए तो हमारा पाकिस्तान की तो है। यहाँ पे ये चाहिए कि यहाँ के लोगों को, जैसे आप देखें यहाँ पे टूरिज्म का हदीस साहब जो उन्होंने जो है वो एक चलाया है, तो कितनी हमने उसमें जो है वो कामयाबी हुई। इसी तरह ये भी करके वहाँ पे जो लोग ज़्यादा जो तबका अनपढ़ लोग हैं, उनको शनाख्ती कार्ड के लिए ना बहुत मसला है, क्योंकि ठीक है नेट पे जो कह रहे हैं वो तो अच्छी बात है। नेट पे जो लोग, एक तो बात यह है वो 30-40 रुपये देते हैं एक आदमी को, वो पहले तो आदमी जो मिलता नहीं है वहाँ पे कि शनाख्ती कार्ड के फॉर्म के लिए, और 30-40 रुपये वो देते हैं। या तो वैसे को चाहिए कि आदमी इधर रख ले, यहाँ से यहाँ का 30 रुपये दे देंगे वो तो मिले, वहाँ पे तो मिलना भी मुश्किल है, आदमी को ढूंढना पड़ेगा, पहले तो आया नहीं कोई मिलता। पेरिस में तो फिर आदमी जो है मिल सकते हैं कि आपको यहाँ पे दुकानदारी लगी हुई है, वहाँ पे दुकानदार लगी हुई है, वो ले रहे 30 रुपये ले रहा है, कोई 40 ले रहा है, वहाँ पे तो कोई आदमी मिलना भी मुश्किल है। फार्म के लिए तो शनाख्ती कार्ड के लिए बहुत मसला है हमारे कराई में, 600-700 फैमिली है हमारे यहाँ। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, आप सब आए। तो मैं चंद बातें हैं जो जितनी बातें हुई हैं तो हर बात में, क्योंकि मैं भी दोस्तों के साथ शामिल था। पहले फेस्टिवल की 2-3 बातें मुख्तसर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह फेस्टिवल एक ऐसी चीज़ हुई है फ्रांस की तारीख में भी, ऐसा शायद यूके के अलावा यूरोप की तारीख में इतने बड़े फेस्टिवल काम हुई। ये हमारी शनाख्त का गढ़ प्यार मोहब्बत से बहुत ज़्यादा है और बड़े शानदार फेस्टिवल हुए हैं। अदीक भाई ने जो कहा है इसमें कुछ हमारी अंदरूनी बातें होती रही हैं कि 7 बंदे काम करने वाले, और आज अगर शायद मैं तो ये नहीं होते वो अपने दिफा में या जो कहते तो हमें पता चलता। आज वो नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब आप मीटिंग करेंगे वो आएंगे तो सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। सारे दोस्तों के अपनी अपनी जहाँ जहाँ रहते हैं, मेरों के साथ बनती है या मैंने इसका तल्का लाजमी है, जिससे हम रह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इनकी जो ख्वाहिश है और मेरे साथ दोस्तों की ख्वाहिश होगी कि हम ऐसा प्रोग्राम करें 14 अगस्त में कर रहे हैं, या अभी कॉन्फ्लिक्टों के बाद जब हम मौका मिले तो हमें कैसी गैदरिंग करें जहाँ हम सब अपने अपने दोस्तों फ्रेंचों को बुलाएं, उनको बताएं अब पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है या पाकिस्तान के क्या हो रहा है, और आने वाले वक्त में हम क्या चाहते हैं कि हम फ्रांस के साथ क्या करना चाहते हैं। क्योंकि हम एक पाकिस्तानी हैं लेकिन हम फ्रांस में अक्सर हमारे दोस्त नेशनल नहीं, हमारे बच्चे भी नेशनल हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए दूसरी चीज़ कि अपने बच्चों के आगे सियासत में कर जाना चाहिए ताकि वो आगे जाएँ और ज़ुबान बने कि पाकिस्तान क्या है, इस्लाम क्या है। हमारा ये बहुत बड़ा मसला है कि हमारे बच्चे आगे नहीं जा रहे हैं, हम जो है ज़्यादा अक्सरियत काम वाले लोग हैं, हमारे तरफ काम तक है लेकिन हमारी आवाज़ नहीं आ रही। कहीं भी बहुत कम चंद ही दोस्त हैं जो मैरियो में हैं, काउंसलर हैं, मैं भी शायद इस तरीके से आप भी जब कभी गैदरिंग हो तो इस पर भी उनको जोर दीजिएगा, ये करें। तो ये खास पॉइंट है कि मेरी कोशिश होगी कि आप इस पर भी गैदरिंग करें। हम हाजिर हैं, ये सारे दोस्त मेरे ख्याल लाएंगे अपने दोस्त फ्रेंचों को, आपके भी इस तरह की हैं, एक अच्छी गैदरिंग करके हम उनको बताएं। और इसके अलावा बैसियत पाकिस्तानी, मेरा कारोबार रेस्टोरेंट है, आप दोस्तों का अपना कारोबार है, तो जहाँ जाएँ हम
इस तरह से अपने किरदार को लोगों को बताएं कि लोग भी महसूस करें यार पाकिस्तानी जो है ना किसी काबिल है। इंशाल्लाह अगस्त में जो है खुल जाएगा यहाँ पे, ये मसला जो है उससे हल हो जाएगा। ये सर वो फिर आपसे लोग आगे को पाएंगे कि अपनी बातें ऑनलाइन करना ये इसको जो है इसके अभी मतलब कि एस्टैब्लिश हो गया है ना, नादर बाबू से हम राब्ते में हैं, वो इस पर वर्क कर रहे हैं, उन्होंने आना है, यहाँ पे टीम आएगी, उससे भी डिस्कशन होगी, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसकी पूरी कोशिश उसमें मैक्सिमम यही होगी कि जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट आप लोगों कर सकें जो है, खासतौर पर जिन लोगों को मुश्किल है उसको डेफिनेटली एम्बेसी में जब डेस्क होगा तो फिर सर्व करेंगे ना। ये करते हैं ये जो लोग बात करते हैं वो शिकायत की हुकूमत पाकिस्तान का एक नुमाइंदा इदारा है, ठीक है, और ये आप लोगों के डिटेल नहीं जानूंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप खबरों में सारी चीज़ें आती रहेंगी, आप लोग पढ़ते भी रहेंगे, पाकिस्तानी अखबार भी पढ़ते हैं, फ्रेंच अखबार भी पढ़ते हैं, आपको सारा हालात का जो है वो सारा आपके इल्म में है। जहाँ तक यहाँ रहते हुए हमारा रूप था, ऑफकोर्स हम हुकूमत पाकिस्तान जो है इस्लामाबाद से जो इंस्ट्रक्शन हमें मिलती हैं उनको फॉलो करते हुए जो इंस्ट्रक्शन हमें मिली और जो हमारा यहाँ पे रोल बनता था हुकूमत फ्रांस के साथ उन तक पैगाम पहुँचाने और मामला को सही करने के लिए, वो हम पूरी तरीके से जो है वो ये रोल जो है बड़े तरीके से अदा करते रहे हैं और आगे भी अदा करते रहे। जहाँ तक ये जो है ओवरऑल इस रिलेशनशिप की बात है तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ये जो है ये रिलेशनशिप जल्द जो है बिल्कुल वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जो है चली जाए, क्योंकि आपको पता है नाजुक मामला है, इस पर जो है पाकिस्तान में बड़ी सेंसिटिविटीज़ हैं और हुकूमत ने भी इस पर आपने वज़ीर आज़म के भी बयान सुने होंगे और दूसरे लोगों के भी बयान आपको सुने होंगे। वो जो है बात मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि बात इंशाअल्लाह जो है वो बेहतर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लु अलैहि القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب النصر وقنا عذاب الميزان یا الہ العالمین جو کلام پاک پڑھی اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول